سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کسانوں کو حکومتی ناقص پالیسیوں سے بہت نقصان ہوا۔ جہاں کسان لائنوں میں لگ کر کھاد خریدیں، اس کسان کارڈ کا کیا فائدہ؟ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی اور سابق رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں عوام حکومتی پالیسیوں سے تنگ آ چکے، کل کاشتکار کے ہمراہ کسان مارچ کریں گے۔ گیلانی ہاؤس میں کسان مارچ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی، سابق رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم، ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی، سٹی صدر ملک نسیم لابر، حاجی شاہد رضا صدیقی، ایم این اے نوید عامر جیوا، عبداللہ کامران مڑل، سابق ایم پی اے عثمان بھٹی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں سے کسانوں کو بہت نقصان ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے اس ایشو کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس کے لیے کوشش کی ہے۔ بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی بل کی صورت میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کو اس معاملے میں تیار ہے۔ گیلانی صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہوں، انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی کی اپنی اسپیچ میں اس صوبے کے حق میں، ہمارے تو منشور میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کا کہنا تھا کہ پالیسی بیان وزیر اعظم کی طرف سے آنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کے خط کی کوئی اہمیت نہیں، حکومت بل لے آئے، پیپلز پارٹی سب سے پہلے ووٹ کرے گی۔ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کسانوں کی فوری طور پر مدد کے لیے پہنچے اور یوریا اور ڈی اے پی صحیح گورنمنٹ ریٹ کے اوپر، بلکہ سبسڈائز ریٹ کے اوپر کسانوں کو دے۔ علی حیدر گیلانی نے کہا حکومت علیحدہ صوبہ بنانے میں سنجیدہ نہیں۔ پرائیویٹ ممبر نے بات اٹھائی تو شاہ محمود قریشی کو بھی خیال آ گیا۔ یہ ایک شعبدہ بازی ہے ایک قسم کی، کہ آپ کو 3 سال بعد، وہ بھی تب جب ایک پرائیویٹ ممبر نے سینٹ کے اندر ایک بل موو کیا تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے بھی جا کے اپنا پوائنٹ سکور کرنا ہے، میں نے بھی گیلری کو کھیلنا ہے، اور وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے آفر کر دی کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم صوبہ بنانے کو تیار ہیں۔ پیپل پارٹی کے عہدیداران نے کل کسان مارچ میں بھرپور شرکت کرنے کا اعادہ کیا۔ کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ پیپلز پارٹی آج کسانوں کے ہمراہ ڈی ڈی خان پل ڈاٹ پر احتجاج کرے گی۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر بھی احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ نوابزادہ افتخار احمد کہتے ہیں کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈی ڈی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی پیر کے روز کسانوں کے حق میں احتجاج کرے گی۔ ڈاٹ پل چوک پر احتجاج کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد نے کہا کہ کسانوں پر گندم کی پیداواری لاگت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ گندم حکومت کو 1900 روپے میں فروخت کریں۔ کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی، ان کا کہنا تھا حکومت گندم کا ریٹ بڑھائے۔ پیپلز پارٹی کسانوں کا قتل عام نہیں ہونے دے گی۔ تحریک لبیک بھی کسانوں کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئی۔ ڈی ڈی خان کے چوک چورہٹہ میں احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ کھاد کی بلیک میں فروخت کاشتکاروں کے ساتھ ظلم ہے۔ کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک پاکستان بھی میدان میں آ گئی۔ ڈی جی خان کی کھاد مارکیٹ چوک چورہٹہ میں احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کاشتکار کھاد کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ کھاد سٹاک کر رکھا ہے، اسی طریقے سے چینی ہو، دال ہو، کوئی بھی چیز ہو سٹاک کرتے ہیں، ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، یہ پھر فروخت کرتے ہیں۔ اگر ان مافیا کو ختم کیا جائے تب یہ ہماری چیزیں روڈ پر ملیں گی، آپ کو ہر آدمی کو عام روٹین میں ملیں گی چیزیں، کیونکہ یہ عام روٹین میں اس لیے نہیں دیتے کہ غریب آدمی ان کے محتاج رہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مافیا کھاد سٹاک کر کے بلیک میں فروخت کر رہا ہے۔ مارکیٹ میں فی بوری 2500 روپے تک مل رہی ہے۔ کسانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے، کسان بیچارے آپ دیکھ لیں 300 کی لائنوں میں ٹھہرتے ہیں، صبح 5 بجے آتے ہیں رات کو، اور جو 1700 والی بوری آتی ہے ان کو 2500 روپے میں دیتے ہیں۔ اوپر پولیس کا دباؤ اور لاٹھی چارج علیحدہ ہوتا ہے۔ ہم اس لیے ان کے حق میں نکلے ہیں، یہ کسانوں پر ظلم بند کر دیا جائے اور ان کو کھاد کی فراہمی بلا امتیاز فوری طور پر شروع کی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کسانوں پر ظلم بند کر کے کھاد کنٹرول ریٹ پر فراہم کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ وقت بدلا لیکن لینئر پارک کی حالت نہیں بدل سکی۔ حالت ایسی کہ اجڑا چمن بھی اس سے بہتر ہو۔ پارک میں نشے کے عادی افراد کی آماجگاہ بن چکا ہے، جگہ جگہ گندگی ہے، کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں۔ علی لیاز کی رپورٹ دیکھیے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے ملتان شہر کو خوبصورت بنانے کے دعوے ٹھوس، شہر کے پارکوں کی حالت بھی بہتر نہ بنائی جا سکی۔ گھنٹہ گھر چوک سے ملحقہ سڑک پر واقع لینئر پارک کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ پارک میں گھاس کا نام و نشان تک نہیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث پارک نشے کے عادی افراد کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ ایک کافی عرصے تو ہی میں گند مچا پہ سارا کچھ
नशाई वगैरह इतना कोई चस नहीं, सारा गंद खराबा है। शहरियों का कहना था कि एक अरसा से पार्क की हालत इंतहाई खराब है। पीएचए ने पार्क की हालत बेहतर बनाने के लिए कभी कोई खातिर-खां इकदाम नहीं उठाए। इत्थे बाल वास नाल कोई भी नहीं आंदा। वजह यह होंदी है कि भाई इत्थे नशाई है, नहीं वजह तू माहौल होवे हुण तुहाडे सामने देख गिनो, इत्थे झूले भी हैं, बाल कोई भी नहीं आंदा पिया। ई वजह तो नहीं आंदा भी यार सारे बाल तरबियत खराब थी वैसी। शहरियों ने पीएचए से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द लीनियर पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। लिया में म्युनिसिपल अमले की गफलत, बेलेवाला मोहल्ला में सफाई की अबतर सूरत हाल, गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर हैं, गट्टों के पानी के बायस से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। गली मोहल्लों में गंदगी के अंबार और सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना था कि ताफुन फैलने से सांस लेना भी मुहाल हो चुका। कोई भी जिम्मेदार हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहा। मकीनों ने मोहल्ला बेलेवाला में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया। गैस बहरान की बात करेंगे। बहावलपुर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरी एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। बहावलपुर में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। 24 घंटों में से सिर्फ 4 या 5 घंटे गैस मुयस्सर होती है। प्रेशर कम होने के बायस खाना भी तैयार नहीं होता, जिस पर शहरी परेशान होकर रह गए हैं। भाईजान गैस है क्या ना, बगैर नाश्ते से घरों आया, हुकूमत क्या करनी पई। शहरियों का कहना था कि गैस आती नहीं, गैस सिलेंडर्स पर ही गुजारा हो रहा है। गैस न होने पर खाना तैयार नहीं होता और रोज बीवी से लड़ाई होती है। गैस होती नहीं है, बीवी से रोजाना लड़ाई होती है, खाना मिलता नहीं है, क्या बंदा करे। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी एलपीजी और लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। एलपीजी और लकड़ियों की मांग बढ़ने पर कीमतों में भी इजाफा हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। शदीद सर्दी में मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटके रहे। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कछुए की रफ्तार से पहुंचने लगीं। कराची से पिशावर जाने वाली खैबर मेल 3 घंटे लेट हो गई। पिशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 2 घंटे, कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस 2.5 घंटे, कराची से मुल्तान जाने वाली जकरिया एक्सप्रेस 2.5 घंटे, कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2.5 घंटे और हवेलिया से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस 1 घंटे ताखीर से पहुंची। बच्चा अगवा केस से कोई ताल्लुक नहीं। अदाकारा आयमा खान की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं उसे झूठे केस में फंसाया गया। पुलिस एहलकारों ने अगवा का बयान दिलवाने के लिए तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब इंसाफ फराहम करे। नकीबुल्लाह अगवा केस में जमानत पर रिहा होने वाली स्टेज अदाकारा आयमा खान ने पुलिस पर इल्जामात की बौछार कर दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा अल्लाह जानता है। और 2 साल का बच्चा मैं कैसे, मुझे ये बताएं, मैं बाहर तक गई हूँ, मैंने आउट ऑफ कंट्री के भी किए शो, मैं पाकिस्तान में भी करती रही हूँ, हर जगह पे। क्या मैं यहाँ से 8 मिनट का सफर है, मैं वहां से बच्चा अगवा करवाऊंगी? तेज अदाकारा का कहना था कि गोद लेने के लिए देवर मुजफ्फर और उसके दोस्त रावल ने बच्चा ला कर दिया और बताया वो बच्चा ईदी सेंटर से लाए हैं। पुलिस ने अगवा का बयान दिलवाने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया। तेज अदाकारा ने कहा कि नकीबुल्लाह अगवा केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो किसी की गोद उजाड़ने का सोच भी नहीं सकती। जी, मेरा देवर और एक और लड़का है रावल नाम का, ये मुझे देकर गए थे कि हम ये बच्चा लेकर आ रहे हैं इधर से ईदी सेंटर से, तो आपने इसके पैसे देने हैं और कुछ दिनों बाद ना 3-4 दिनों बाद इसकी ना कोई मतलब पेपर वगैरह साइन होंगे तो ये बच्चा आपके पास आ जाएगा। तेज अदाकारा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और 70 लाख का कीमती सामान साथ ले गई। घर और गली के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जाया कर दी गई। जब ये मुझे लेकर गए तो 1 घंटे बाद पुलिस वापस आई। जब पुलिस वापस आई है तो उन्होंने पूरे घर की तोड़फोड़ कर दी है। मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी। घर में 20-25 तोले जेवर था स्टोर में, कबर्ड में पड़ा हुआ, अलमारियां तोड़ गए हैं, जेवर बीच में से निकाल के उसी तिजोरी को लॉक करके चाबियां साथ ले गए हैं। दरवाजे सेंटर से तोड़ दिए हैं, एलसीडियां पुलिस वाले सारी ले गए हैं मेरे घर की, पूरे घर में लगी हुई थी और वो आपको मैं सारा दिखाऊंगी। सिर्फ उसके पीछे वो लॉक करने वाली वो जो जगह होती है लोहे की, वो खड़ी हुई है, उसके एंगल खड़े हुए हैं। अदाकारा आयमा खान को दिल्ली गेट से 3 साल नकीबुल्लाह अगवा केस में शोहर और देवर समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया था कि अदाकारा ने नकीबुल्लाह को 5 लाख रुपए देकर अगवा करवाया। पुलिस के मुताबिक बच्चा आयमा खान के घर से बाजियाब हुआ। स्टेज अदाकारा आयमा खान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान।
डीसी मुल्तान का सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स का दौरा, जाहिदा कुरैशी और मोहम्मद आसिम ने ब्रीफिंग दी। डीसी ने कस्टमाइज व्हीलचेयर मंसूबे की हुकूमती सतह पर पजीराई का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अमर करीम खान ने स्पेशल अफराद की हौसला अफजाई के लिए NGO दफातर का दौरा किया। जाहिदा कुरैशी और मोहम्मद आसिम ने कस्टमाइज व्हील चेयर पर मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। जाहिदा कुरैशी का कहना था कि वो नफा और नुकसान के बगैर व्हील चेयर बना रहे हैं। मोहम्मद आसिम का कहना था एक व्हील चेयर पर 12,000 से 24,000 तक लागत आती है। हम लोग मुख्तलिफ किस्म की व्हील चेयर तैयार करके गए हैं। हम तकरीबन 8 से 10 मॉडल हम तैयार कर चुके हैं, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो, चिल्ड्रन विद डिसेबल्स, वुमेन विद डिसेबिलिटीज, कलरफुल और स्पोर्ट्स की जो व्हीलचेयर्स हैं वो सारी हम तैयार कर चुके हैं और हर साल नया मॉडल एक तैयार करते हैं। एक नॉर्मल व्हीलचेयर 12,000 से लेकर 22,000 के दरमियान तक मिल जाती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। जबकि अगर यही व्हीलचेयर अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो ये व्हीलचेयर कहीं 1 लाख से ज़्यादा की कीमत में जाती है। तो इसको मतलब लो कॉस्ट रखा हुआ है और डिसेबल पर्सन की नीड के मुताबिक ये व्हीलचेयर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि माजूर अफराद खुद काम करते हैं, ये काबिल तारीफ है। इस प्रोजेक्ट को हुकूमती सरपरस्ती में मजीद बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने एक्ट से साबित किया है कि ये वाकई स्पेशल पर्सन है। कम से कम मैं ये काम नहीं कर सकता, हम जैसे लोग अपने ये काम नहीं कर सकते। तो खुद वो चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मुझे दिखाया है, स्पोर्ट्स व्हील चेयर हैं जो अमेरिका में बन सकती है, वो ये मुल्तान में बैठ के अपने लिमिटेड वसाइल से बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि माजूर अफराद की मदद से बढ़कर कोई चीज नहीं। कोई भी डिसेबल शख्स अब अपनी डिसेबिलिटी की वजह से अपने शौक से महरूम नहीं होगा, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाली ये व्हील चेयर्स अब मुल्तान में बन रही हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। पंजाब के वेटरनरी अस्पतालों में बेहतरी लाने का मंसूबा तैयार। डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर्स वेटरनरी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के दौरे करेंगे। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवाने की हिदायत कर दी गई है। पंजाब के वेटरनरी अस्पतालों में बेहतरी लाने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। सीएम पंजाब के अहकामात पर डीसीज और एसीज को वेटरनरी अस्पतालों और वेटरनरी डिस्पेंसरियों के दौरे करने का पाबंद कर दिया गया है। डीसीज और एसीज को वेटरनरी अस्पतालों और वेटरनरी डिस्पेंसरियों में अद्वियात और ग़िज़ाओं की ज़रूरियात का जायजा लेने की हिदायत की गई है। उधर मुल्तान में एहसास दस्तरखान के जरिए अवाम को रिलीफ देने का सिलसिला तेज हो गया। डीसी आमिर करीम खान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द के हमरा जनरल बस स्टैंड दस्तरखान का दौरा किया। डीसी ने दस्तरखान का दुरानिया बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और चैम्बर के अहदेदारान ने शहरियों के साथ खाना खाया। वफ्द में सदर राजा मोहम्मद हुसैन, सीनियर नायब सदर सुहेल तोफैल, नवीद इकबाल, शेख फैसल सईद शामिल थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और सेक्रेटरी आरटी राना मोहसिन भी वफ्द के हमरा थे। डीसी का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी एहसास दस्तरखान में भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जनूबी पंजाब के अमीर पीर सैयद सरवर बुखारी की लय्यामत हुई। अमीर जनूबी पंजाब की लय्यामत पर बड़े जुलूस के हमरा इस्तकबाल किया गया। पीर सरवर बुखारी का कहना था कि टीएलपी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। लब्बैक पाकिस्तान जनूबी पंजाब के अमीर पीर सैयद सरवर बुखारी एक रोजा दौरा पर लिया पहुंचे। टीएलपी के रहनुमा का चौक आजम, फतेहपुर और लिया में रैली की शक्ल में शानदार इस्तकबाल किया गया। अमीर टीएलपी जनूबी पंजाब को काफिला की शक्ल में जिला याफिस लाया गया, जहां कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर सैयद सरवर बुखारी का कहना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में इंशाअल्लाह अजीज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह भरपूर हिस्सा भी लेगी और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेगी, इंशाअल्लाह अजीज एक सरप्राइज देगी पूरे मुल्क से इंशाअल्लाह। पीर सरवर बुखारी का कहना था कि जनरल इलेक्शन में किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर कोई बात करेगा तो फिर हम देखेंगे ना कि उनका मंशूर क्या है, किस हवाले से वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो इंशाअल्लाह शूरा उसका फैसला करेगा। जिलाई अमीर अजीमुल्लाह खास का कहना था कि जिला लिया में टीएलपी की तंजीम साजी तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी है। हमारी तंजीम साजी तकरीबन 80% तक हो चुकी है और हमारे यूसी तकरीबन कंप्लीट है 80% तक। पीर सरवर बुखारी का कहना था कि तमाम कारकुन इलेक्शन के हवाले से तैयारी मुकम्मल करें। तहरीक लब्बैक जनूबी पंजाब की अमीर की आमद के मौका पर मकामी रहनुमाओं की कसीर तादाद मौजूद रही। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया।
سابق وزیر اعظم اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں لانگ مارچ آرگنائزنگ کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ راجہ پرویز اشرف، نیر حسین بخاری، قائم علی شاہ، انور سیف اللہ خان اور صادق عمرانی نے شرکت کی۔ کسان ٹریکٹر ٹرالی مارچ کو کامیاب بنانے کا عزم کیا گیا۔ 27 فروری کے پیپلز پارٹی کے تاریخی لانگ مارچ کے لیے سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر بننے والی لانگ مارچ آرگنائزنگ کمیٹی کا اراکین راجہ پرویز اشرف، نیر حسین بخاری، قائم علی شاہ، انور سیف اللہ خان اور صادق عمرانی نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں کسان ٹریکٹر ٹرالی مارچ کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔